وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سال 2022-23 کے لیے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ کابینہ کو گندم کی طرف موجودہ صورتحال اور منسوخ کیے گئے پیٹرولیم ایکسپلوریشن لائسنسز کی بحالی پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے کمیٹی بنا دی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی فارماسیوٹیکل کمپنیز کی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر بنائی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے کمیٹی کی سربراہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کریں گے۔ کمیٹی میں وزیر صحت عبدالقادر پٹیل، ایاز صادق اور دیگر اعلیٰ حکومتی عہدیدار بھی شامل ہوں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے الیکشن کمیشن کو 15 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی، جس میں سے 5 ارب فوری طور پر جاری کیے جائیں گے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ای سی سی نے 3 حکومتی بجلی گھروں کو 93 ارب روپے کی ادائیگیوں کی منظوری دے دی۔ 3 حکومتی بجلی گھروں کو ادائیگی نجی بجلی گھروں کے برابر ٹیرف پر کی جائے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پچھلے چند ہفتوں میں عمران خان کی سیاست بے نقاب ہوئی۔ فوج کے خلاف تحریک انصاف کی مہم اس کی بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف سے زیادہ سیٹیں لیں۔ کوئٹہ کے علاقے بلیلی میں بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کے قریب خودکش دھماکہ، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈی آئی جی غلام اصفر مسہر نے خودکش دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں 22 اہلکاروں سمیت 27 افراد بھی زخمی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں ٹرک میں آگ لگ گئی، جبکہ دھماکے کے باعث قریب سے گزرنے والی گاڑی بھی زد میں آ گئی، جس میں سوار خاتون بھی زخمی ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا ایک پارٹی اور لیڈر کے خلاف پریس کانفرنس کی جاتی؟ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت میں گورننس کے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی بالکل مداخلت تھی اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کا مرکزی جلسہ آج نشتر پارک کراچی میں ہوگا۔ جلسے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے نشتر پارک کا دورہ کر کے جلسہ گاہ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 3.6 اور گہرائی 300 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ایبٹ آباد سے 34 کلومیٹر دور تھا۔ کورونا کے مزید 39 کیسز رپورٹ، 29 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ قومی ادارہ صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 7221 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 39 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ سے متعلق راولپنڈی میں تیاریاں جاری۔ راولپنڈی پہلے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں آج پریکٹس کریں گی۔ 3 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کی ٹرافی کی تقریب رونمائی آج ہوگی۔ اس حوالے سے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ انگلینڈ کے خلاف تاریخی ٹیسٹ سیریز کے لیے پرجوش ہیں۔ انگلش ٹیم کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسن روف۔
हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना के इजलास में साल 2022-23 के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। काबीना को गंदम की तलब, मौजूदा सूरत हाल और मनसूख किए गए पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलब कर लिया है। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना के इजलास में साल 2022-23 के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना को गंदम की तलब, मौजूदा सूरत हाल और मनसूख किए गए पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का मरकजी जलसा आज निश्तर पार्क कराची में होगा। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जलसे से पहले आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने निश्तर पार्क का दौरा करके जलसा गाह के इंतजामात का जायजा लिया है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का मरकजी जलसा आज निश्तर पार्क कराची में होगा। जलसे से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जलसे से पहले आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने निश्तर पार्क का दौरा करके जलसा गाह के इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची के निश्तर पार्क में आज होने वाले जलसे से मुतालिक ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी प्लान मुरतब कर लिया। कराची ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाजिमाबाद और 3 हट्टी से आने वाली बसों, मिनी बसों और दीगर ट्रैफिक को लसबेला से नुमाइश जाने की इजाजत नहीं होगी। तमाम ट्रैफिक को गुरु मंदिर से पीपी चौरंगी, बरास्ता बनोरी लाइट सिग्नल या सोल्जर बाजार की जानिब से भेजा जाएगा। जमशेद रोड और 3 हट्टी से नुमाइश और कैपरी की तरफ भी आम लोगों को जाने की इजाजत न होगी। इसके अलावा पीपी चौरंगी से आम ट्रैफिक के नुमाइश की जानिब जाने की इजाजत नहीं होगी। तमाम ट्रैफिक को खुदादाद कॉलोनी, फ्लाईओवर, रैंप से सोसाइटी लाइट सिग्नल से शाहराए कायदीन या इससे मुत्तसिल रास्ते की जानिब भेजा जाएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस के हवाले से कराची में जलसा है। इस हवाले से जो है ट्रैफिक पुलिस उसने अपना ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी के कराची के निश्तर पार्क में आज होने वाले जलसे से मुतालिक ट्रैफिक पुलिस ने खसूसी प्लान मुरतब कर लिया। कराची ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाजमाबाद और 3 हट्टी से आने वाली बसों, मिनी बसों और दीगर ट्रैफिक को लसबेला से नुमाइश जाने की इजाजत नहीं होगी। तमाम ट्रैफिक को गुरु मंदिर से पीपी चौरंगी, बरास्ता बनोरी लाइट सिग्नल या सोल्जर बाजार की जानिब भेजा जाएगा। जमशेद रोड और 3 हट्टी से नुमाइश और कैपरी की तरफ भी आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा पीपी चौरंगी से आम ट्रैफिक को नुमाइश की जानिब की इजाजत जाने की नहीं होगी। तमाम ट्रैफिक को खुदादाद कॉलोनी, फ्लाई और रैंप से जाने की जानिब सोसाइटी लाइट सिग्नल से शाहराए कायदीन या इससे मुत्तसिल रास्ते की जानिब भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए कमेटी बना दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अद्वियात की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर बनाई गई है। हुकूमत की जानिब से कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल, अयाज सादिक और दीगर आला हुक्काम जो हैं इसमें शामिल होंगे। कमेटी अद्वियात की कीमतों में इजाफे के मुतालबात का जायजा लेकर फैसला करेगी। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए कमेटी बना दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी फार्मास्यूटिकल कंपनियों की अद्वियात की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर बनाई गई है। हुकूमत की जानिब से कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार करेंगे।
نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر صحت عبدالقادر پٹیل، ایاز صادق اور دیگر اعلیٰ حکومتی عہدیدار اس میں شامل ہوں گے۔ کمیٹی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے مطالبات کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد پولیس نے شہزاد اکبر اور ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل ثناء اللہ عباسی کے خلاف فراڈ کا مقدمہ ایف آئی اے کو منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے مقدمے کی فائل تیار کر کے ایف آئی اے کے حوالے کی جائے گی۔ مقدمے میں شہزاد اکبر اور ثناء اللہ عباسی پر جھوٹا مقدمہ بنانے کا الزام عائد ہے۔ ملزمان پر بوگس عدالتی دستاویزات تیار کرنے کا بھی الزام ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد پولیس نے شہزاد اکبر اور ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل ثناء اللہ عباسی کے خلاف فراڈ کا مقدمہ ایف آئی اے کو منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے مقدمے کی فائل تیار کر کے ایف آئی اے کے حوالے کی جائے گی۔ مقدمے میں شہزاد اکبر اور ثناء اللہ عباسی پر جھوٹا مقدمہ بنانے کا الزام عائد ہے۔ ملزمان پر بوگس عدالتی دستاویزات تیار کرنے کا بھی الزام ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پچھلے چند ہفتوں میں عمران خان کی سیاست بے نقاب ہوئی۔ فوج کے خلاف تحریک انصاف کی مہم اس کی بڑی وجہ ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف سے زیادہ سیٹیں لیں۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ مسلم لیگ کاف کے رہنما کامل علی آغا نے کہا کہ کاف لیگ ایک علیحدہ جماعت ہے، ضروری نہیں کہ ہم ہر معاملے پر اتحادی پارٹی کے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی فوج کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات بنائے رکھے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پچھلے چند ہفتوں میں عمران خان کی سیاست بے نقاب ہوئی۔ فوج کے خلاف تحریک انصاف کی مہم اس کی بڑی وجہ ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف سے زیادہ سیٹیں لیں۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ مسلم لیگ کاف کے رہنما کامل علی آغا نے کہا کہ کاف لیگ ایک علیحدہ جماعت ہے، ضروری نہیں کہ ہم ہر معاملے پر اتحادی پارٹیوں کے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی فوج کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رکھے ہیں۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے الیکشن کمیشن کو 15 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ گزشتہ روز وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں ای سی سی نے الیکشن کمیشن کو 15 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی، جس میں 5 ارب روپے فوری طور پر جاری کیے جائیں گے۔ یہ رقم خرچ ہونے کے بعد 10 ارب روپے مزید جاری کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے 47 ارب 41 کروڑ روپے مانگے تھے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ای سی سی نے 3 حکومتی بجلی گھروں کو 93 ارب روپے کی ادائیگیوں کی منظوری دے دی ہے۔ 3 حکومتی بجلی گھروں کی ادائیگی نجی بجلی گھروں کے برابر ٹیرف پر کی جائے گی۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی الیکشن کمیشن نے 15 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئٹہ کے علاقے بلیلی میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر معمول پولیس کی گاڑی پر دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے واقعے کی فوری تحقیقات کی ہدایت دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پولیو اہلکار ملک سے اس موذی مرض کے خاتمے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شر پسند عناصر ملک سے پولیو کے خاتمے کی مہم کو روکنے میں ناکام رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی قوم اور قانون نافذ کرنے والے ادارے شر پسند عناصر کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے دھماکے کے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی عوام میں جڑیں اتنی گہری ہیں کہ کوئی بھی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یوم تاسیس کے موقع پر جاری کیے گئے سلسلہ وار ٹویٹس میں شیری رحمان نے کہا کہ پارٹی قائدین، کارکنان اور چاہنے والوں کو پارٹی کے 55 میں یوم تاسیس مبارک ہو۔ انہوں نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو اور تمام شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ساتھیوں سمیت جس پارٹی کی بنیاد رکھی وہ ملک کی بقا کی علامت بن گئی۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا ایک پارٹی اور اس کے لیڈر کے خلاف پریس کانفرنس کی جاتی؟ ایک انٹرویو میں اسد عمر نے کہا کہ تسلیم کیا کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت میں ایوان میں ووٹ پورے کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی۔ اسد عمر نے کہا کہ ان کی حکومت کے گورننس میں معاملات اسٹیبلشمنٹ کے بالکل مداخلت تھی اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت میں عمران خان کے فیصلوں کو نافذ کرنے اور فیٹف کے معاملے پر آرمی ان کی ساتھ تھی۔ امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی آرمی چیف کی تعیناتی پاکستان کے اندرونی معاملہ ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ امریکہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ 2 دہائیوں سے پاکستانی عوام دہشت گرد حملوں سے بری طرح متاثر ہوئے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری چاہتے ہیں اور پاکستانی حکومت کی کوششوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ TTP جیسے خطرات سے نمٹنا پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے۔ پاکستان سے علاقائی اور عالمی دہشت گردوں کے خلاف تعاون اور کوششوں کی امید رکھتے ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے بلیلی میں ہونے والے خودکش حملے میں پولیس اہلکار اور ایک بچہ جاں بحق جبکہ 22 افراد جاں بحق اور اہلکاروں سمیت 27 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق خودکش دھماکہ میں بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کے باعث قریب سے گزرنے والی گاڑی بھی زد میں آ گئی۔ پولیس کا بتانا ہے کہ دھماکے میں پولیس اہلکاروں سمیت عام شہری بھی زخمی ہوئے۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکار اور دیگر افراد کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ کوئٹہ کے علاقے بلیلی میں ہونے والے خودکش حملے میں پولیس اہلکار اور ایک بچہ جاں بحق جبکہ 22 افراد پولیس اہلکار سمیت 27 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق خودکش حملے میں بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کے باعث قریب سے گزرنے والی گاڑیاں بھی زد میں آ گئیں۔ پولیس کا بتانا ہے کہ دھماکے میں پولیس اہلکاروں سمیت عام شہری بھی اس کی زد میں آئے۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں اور دیگر افراد کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 55ویں یوم تاسیس کے موقع پر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے روال ہاؤس میں جلسہ منعقد، جس میں خواتین مردوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے جن کے لیڈروں نے جمہوریت کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو آئین دیا، یونیورسٹیاں دیں، ایٹم بم بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سندھ بھر کے لاکھوں کی عوام کی مدد کی گئی اور اب سیلاب زدگان کی مدد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں سیلاب کی بدترین صورتحال تھی۔ پیپلز پارٹی کے قائدین نے علاقوں میں جا کر عوام کی مدد کی، گھروں میں راشن دیا گیا، سیلاب کے پانی کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اس موقع پر راول شرجیل انعام پیپلز یوتھ ونگ کے صدر جاوید نایاب لغاری اور دیگر نے خطاب کیا، جبکہ اس موقع پر حاجی بدر احمد میمن، اسماعیل وسان، زامن حسی کلیری سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ پیپلز پارٹی کے 55ویں یوم تاسیس کے موقع پر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے راول ہاؤس میں جلسہ منعقد ہوا، جس میں خواتین مردوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے جن کے لیڈروں نے جمہوریت کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی دی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو آئین دیا، یونیورسٹیاں دیں، ایٹم بم دیا۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سندھ بھر کے لاکھوں کی عوام کی مدد کی گئی اور سیلاب زدگان کی مدد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ میں سیلاب کی بدترین صورتحال تھی۔ پیپلز پارٹی کے قائدین نے ہر علاقوں میں جا کر عوام کی مدد کی، گھروں میں راشن دیا گیا، سیلاب کے پانی کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اس موقع پر راول شرجیل انعام میمن نے پیپلز پارٹی یوتھ سندھ کے صدر جاوید نایاب لغاری نے بھی خطاب کیا۔ نومبر کا اختتام صوبائی دارالحکومت کو سموگ کی لپیٹ میں ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے سموگ ایکسپرٹ ڈاکٹر ذوالفقار کا کہنا ہے کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کے باوجود سموگ معمولی شدت سے پھیلی ہے۔ کارخانوں، گاڑیوں، گیس نہ ہونے کے باعث لکڑیوں کا دھواں سموگ کی شدت کا باعث بنا ہے۔ آئندہ دنوں سموگ کا مزید بڑھنے سے حد نکاح صفر ہو جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کی خطرناک حد کو پہنچ چکا ہے۔
99% शहरियों की सेहत मुतासर हो रही है। स्मोक एमरजेंसी लगाकर स्कूल्स बंद किए जाएं और दफातर में हाजिरी 50% तक महदूद की जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 10 टाउन्स में सेंसर लगाए हैं। शाहदरा और मार रोड पर भी फजाई आलूगी सबसे ज्यादा है। आपको एक बार फिर फजाई आलूगी के हवाले से अपडेट करें कि नवंबर का अख्ताम है, सूबाई दारुल हुकूमत को स्मोक की लपेट में है। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्मोक एक्सपर्ट डॉक्टर जुल्फकार का कहना है कि हुकूमत के मौसर इकदाम के बावजूद स्मोक गैर मामूली शिद्दत से फैल चुकी है। कारखानों, गाड़ियों और गैस न होने के बायस लकड़ियों का धुआं स्मोक की शिद्दत का बायस बना है। आइंदा दिनों स्मोक मजीद बढ़ने से हद निगाह सिफर हो जाएगी। उनका कहना है कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 की खतरनाक हद को पहुंच चुका है। 99% शहरियों की सेहत मुतासर हो रही है। स्मोक एमरजेंसी लगाकर स्कूल्स बंद किए जाएं और दफातर में हाजिरी 50% तक महदूद की जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 10 टाउन्स में सेंसर लगाए हैं। शाहदरा और मार रोड पर फजाई आलूदगी सबसे ज्यादा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदुराह में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा हरीपुर, एबटाबाद और मानसेरा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 3.6 और गहराई 300 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज एबटाबाद से 34 किलोमीटर दूर था। कौमी इदारा सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 7,221 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 39 अफराद के टेस्ट मस्बत आए हैं। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कौमी इदारा सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 7,221 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 39 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह शोरकोट के नवाही इलाके बुध रजबाना हवेली वाला में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। तकरीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई और जिलाई क़यादत ने भी शिरकत की। इस मौके पर केक भी काटा गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जी गुलाम शबीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल से मौजूद हूँ शोरकोट के। आज शोरकोट में यौम तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55 जो है वो मनाया जा रहा है। और यहाँ पर हमारा आबिद जो कि जिला जंग के नायब सदर है, उनके डेरे पे स्पेशल यहाँ पर एक सेमिनार भी मुनक्किद किया गया है और यहाँ पर यौम तासीस के सिलसिले में केक भी काटा गया है। मेरे साथ मलिक आसिफ यकूब साहब मौजूद हैं जो कि लॉयर विंग के पंजाब के नायब सदर हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आज के यौम तसीस के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे। मतलब साहब क्या बताएंगे आज के यौम तसीस के हवाले से? देखें जी, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना 55 जो है यौम तसीस मना रही है। आज से 55 साल कबल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी पंजाब में और लाहौर में रखी थी और इंशाल्लाह जो है वो मरकजी क़यादत जो है उनके हुक्म पर जो है हम लाहौर में भी बहुत बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं। और आज ये देखें कि 55 साल पहले जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का जो नारा लगाया था, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी नारे पर इलेक्शन लड़ रही है और उसी नारे पर मैदान में मौजूद है। और उनका नवासा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस वक्त मौजूदा वजीर खारजा भी हैं, वो इंशाल्लाह इस मुल्क में जो है वो गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान दिलवाएगा। बस बताइएगा कि आज पूरे पाकिस्तान में आपके यौम तसीस प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर, इनको आज आप अपनी जो आपके वर्कर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, हम ये देखें, एक मुश्किल दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे रहा है। जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन में सिलेक्टेड को गवर्नमेंट दे देगी और बाद में उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है, तो हम वर्कर्स से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अब एक्टिव हो जाए, क्योंकि अगला दौर बिलावल भुट्टो जरदारी का है और सिर्फ गरीब का दौर होगा। गरीब, भारी मजदूर को और जो ट्रेड यूनियंस हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, उनको दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उजागर करेगी और आने वाले इलेक्शन में हम इनको बता देंगे कि सिर्फ और सिर्फ भुट्टो के नारे ही बचेंगे।
जी बिल्कुल, उनका यही मैसेज है अपने वर्कर्स के लिए कि यौम तहसीस के सिलसिले में वो अपने तमाम वर्कर्स को एक्टिव करना चाह रहे हैं, ताकि अपने जो पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा मकान और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मिलकर आने वाले इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि हकीकी जो उनका लीडर है उनका बिलावल भुट्टो। फोर्ट अब्बास सिटी प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम ठाकुर से, जो कि इस वक्त सिटी प्रेस क्लब में मौजूद हैं। जी वसीम। बिल्कुल, फोर्ट अब्बास में सहाफ़ी तंजीमों के हवाले से अगर बात की जाए तो फोर्ट अब्बास में जो है सिटी प्रेस क्लब का जो है सालाना इलेक्शन का इनकाद हुआ, जिसमें जो है रिजवान कम्बो जो है वो सदर मुंतखब हुए और नुमान सईद जो है वो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। और इसके अलावा बाकी ओहदेदारान को जो है मुबारकबाद देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी जाहिद कम्बो साहब प्रेस क्लब तशरीफ लाए हैं। जी तो हाजी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम सिटी प्रेस क्लब फोर्ट अब्बास के दोस्तों को मुबारकबाद। मुझे बहुत खुशी हुई है कि तमाम नौजवान हैं और आगे जाके तमाम नौजवानों ने ही पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है और हमें अपने काम से इंसाफ करना है। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो नौजवान हैं ये अच्छा काम करेंगे और फोर्ट अब्बास को आगे लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी जाहिद कम्बो साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान को मेरी तरफ से मुबारकबाद और मैं इनके लिए जो है नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। ये अपने इलाके के मसाइल जो हैं वो हमेशा की तरह हक सच पर मबनी जो है वो। वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सिंध भर की तरह उबाड़ो के करीब गांव कालू ढक्कन कोटलू में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में अरसा दराज से असातिज़ा गायब हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजिब सोमरो। जी राजिब। जी, इस वक्त मौजूद हैं हम उबाड़ो के करीब गांव कालू ढक्कन कोटलो में। आइए, यहाँ पर स्कूल जो इस वक्त सुबह का टाइम है लेकिन असातिज़ा भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। यहाँ पर ये गांव के मकीन हैं जो सरापा एहतजाज हैं। आइए उनसे पूछते हैं आखिर उनका क्या कहना है। तो कोई पनबार को नहीं मास्टर लाइ काॾे ॾियनि छा आहे इज़ा कंदा वेठा आहियूं त असांखे वास्ते अलाह जे उस्ताद चए को ॿार पढ़ाए हिकिड़ो कोन्हे वीचारा को काॾे वियो को काॾे हलियो वियो आहे को ॿियो छा करनि। ऐं मास्टर जेके आहिनि कोई हिकु अधु पंहिंजा ॿार वॾनि स्कूलनि में पढ़ाईंदा पिया आहिनि। असांजा जेके ॻोठ जा आहिनि ग़रीब ॿार उहो धिका खाई रोडनि ते वञी वीचारा किथे हेॾे भारचुनी पढ़ंदा आहिनि किथे स्कूल जी हालत इहा आहे जेके तव्हां ॾिसंदा पिया। असांजी बाबा गुज़ारिश आहे उस्तादनि खे ऐं सिंध गवर्नमेंट खे त बाबा टाइम सां अचो। हाणे हे टाइम ॾाढा थियनि था त अञा त उस्ताद न आहे। उस्ताद बिल्कुल अञा स्कूल खुलियल आहे टाइम। राजिब सोमरो, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टंडोला यार में चोरी की वारदातों का सिलसिला रुक न सका। थाना ए सेक्शन की हदूद में टंडू सोमरू रोड पर मुनव्वर शाह के घर में चोरी की वारदात। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आरिफ अराई वहाँ पर मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जानते हैं। जी आरिफ, बताएगा कि यहाँ पर चोरियों का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? हम मौजूद है मुतासरा घर के अंदर जहाँ पे रात को चोरी की वारदात हुई है। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी भैया, क्या हुआ था? भाई रात को तकरीबन 2 या 3 बजे ये चोर दोनों ताले तोड़ के सामान ले गए, जिसमें से एक पिस्टल लाइसेंस समेत तकरीबन 2 से 2.5 तोला सोना था और बैटरी ले गया, चार्जर ले गया और मोबाइल ले गया। ये किसका घर है? ये मेरे भाई का, छोटे का भाई का घर है। वो 4 चिल्ले पे गया हुआ है जमात में। तो बच्चे उनके यहीं रहते हैं या बच्चे कहीं और रहते हैं? बच्चे रात हमारे उधर थे घर पर, इस वजह से वो रात घर पर कोई भी नहीं था, इस वजह से ये ताला लगाए थे। तो आपको कैसे पता चला कि चोरी हुई? रात को कोई घर पे मौजूद था या कोई भी नहीं, कोई भी नहीं था। उसका सामने बिल्कुल ससुराल है। ससुराल में से कोई जब बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो सामने का दरवाज़ा देखा तो दोनों खुला हुआ था। उसने जाके घर पर बताया तो फिर वो आके उन्होंने देखा तो ये सारा सामान फैला हुआ था, चोरी हुई थी। तो आप लोगों को किसी बंदे के ऊपर शक है या आप लोगों को पता नहीं है कि किसने ये वारदात की? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई शक नहीं है। बाकी ये है कि हम इंतज़ामिया से कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी ये चोरी रिकवर की जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, वारिसों का मौक़िफ़ ये है कि हमें किसी के ऊपर शक तो नहीं है, लेकिन ये वारदात हमारे साथ हुई है और
जो भाई है जिनका घर है वो भाई जो है। आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इरफान कैसर नामी मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इरफान कैसर नामी मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आदिल अहमद से। जी आदिल, बताइएगा कि इस मुसाफिर को क्यों गिरफ्तार किया गया? आदिल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, एक बार फिर उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इरफान कैसर नामी मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इरफान कैसर नामी मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट करें कि FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कार्रवाई करते हुए इरफान कैसर नामी मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि FIA इमिग्रेशन ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इरफान कैसर नामी मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इरफान कैसर नामी मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर आदिल अहमद से। जी आदिल, बताइएगा कि FIA ने इस मुसाफिर को क्यों गिरफ्तार किया? हाँ जी बिल्कुल, FIA इमिग्रेशन ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इरफान कैसर नामी मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया है। मुसाफिर बैनुल-अक़वामी प्रवास पर इटली जा रहा था। मुसाफिर की जानिब से पेश किया जाने वाला इटली का रेजिडेंस परमिट जाली निकला है। मुलजिम को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल लाहौर सर्कल के हवाले कर दिया गया है और तफ्तीश भी जारी है। आदिल अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उम्मीदवार बराए MNA 119 मियाँ आबद अली मनावा की साहिबजादी और मियाँ ज़हीरुद्दीन बाबर मियाँ शहजाद यूनुस की भतीजी की रस्म हिना की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें शहर की मारूफ समाजी, सियासी व कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। रस्म हिना की तकरीब में हाजी अमजद मुग़ल, मियाँ आमिर मलिक काशिफ समेत सीनियर PTI क़यादत ने शिरकत की। इस मौका पर मेहमानों का क्या कहना था, आइए जानते हैं। दुआ करें, बेटी की मेहंदी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खैर खैरियत से सारा फंक्शन, और बस दुआओं की ज़रूरत है कि बच्चों के नसीब अच्छे करें। मियाँ साहब बड़ी अच्छी शख्सियत है माशाल्लाह, समाजी शख्सियत है, सियासी शख्सियत है और इंशाल्लाह PTI की तरफ से नेशनल असम्बली NA 119 के कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला दुआ करे अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे। सबसे पहले तो मैं मियाँ आबद बनामा साहब को इस मौके के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये आज बच्ची के मेहंदी की तकरीब है और बहुत सारे दोस्त और मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों ख़ानदानों के लिए ये खैर और आफ़ियत का मामला हो और खुदावंद करीम सारे मामलात के अंजाम बखैर करे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। यहाँ सारे PTI से भी सारे दोस्त मौजूद हैं। मियाँ आबिद अली मनावा साहब एक तो हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं और फिर इलाके में बहुत सारी बेटियों की रुखसती में अहम किरदार अदा करते हैं और आज उनकी नहीं हमारी बेटी है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब फ़रमाए, शरीरों के शर हासिदीन के हसद से महफूज फ़रमाए, दुनिया की गर्म हवाओं से महफूज फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको ज़माना भर की खुशियाँ अता फ़रमाए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम अपनी बेटी को अल्लाह की रज़ा के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम ये फरीज़ा अदा कर रहे हैं। मैं करोड़ा हाँ शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला तमाम जो वालिदैन हैं उनको ऐसी खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं बारहा दफ़ा अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ और यहाँ आने वाले जो मेरे अजीज़ो कारब हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी खुशियों में शरीक हुए। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि देखें मैं ये समझता हूँ कि एक मुसलमान के लिए ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बड़ी
डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल के नोटिस पर पंजाब बार कौंसिल के अहदेदार से भत्ता मांगने वाला रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। आपको एक बार फिर बताएं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल के नोटिस पर पंजाब बार कौंसिल के अहदेदार से भत्ता मांगने वाला रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आपको एक बार फिर अपडेट करें कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल के नोटिस पर पंजाब बार कौंसिल के अहदेदार से भत्ता मांगने वाला रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। ये वसीम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अब देखेंगे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल के हुक्म पर जो है वो पंजाब बार कौंसिल के अहदेदार से भत्ता मांगने वाला रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और मैं बताता चलूं कि सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम अजीज उर्फ गुल्लू भट्ट ने कालेजन तंजीम का रुकन जो है वो जाहिर करके पंजाब बार कौंसिल के अहदेदार से 50 लाख रुपए जो है वो भत्ता मांगा था टेलीफोन पर, जिस पर जो है वो मुलजिम ने रकम ना देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी, जिसका दर्ज कर लिया गया। ताहाल जो है वो मुलजिम इसी तरह से करता था, भत्ता मांगने के बाद फायरिंग भी करता था। लेकिन एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मोहम्मद जैन के मुताबिक ये बात सामने आई है कि मुलजिम ने जब भत्ता मांगा वकील साहब से तो उस पर जो है वो उसके ऊपर फायरिंग भी की गई और ताहाल जो मुलजिम फरार हो गया था, जिसको जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम इंतहाई खतरनाक था। जिस तरह से मैंने बताया कि पंजाब बार का जो है वो अहदेदारान था, उसको जो है वो फायरिंग करके जख्मी करने की कोशिश भी की गई, लेकिन मुलजिम जो था वो खुद को जो है वो अजीज उर्फ गुल्लू भट्ट के नाम से जो है वो पहचान करवाता था। लेकिन ये खुद को जो है वो कालेजन तंजीम का जो है वो रुकन भी बताता था, ताकि दहशत गर्दी का जो ऐसा कोई वाकया पेश आए तो लोग डर जाते हैं। तो उसी पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से हुक्म दिया गया कि मुलजिम को गिरफ्तार करो, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम के हवाले से मैं बताता चलूं कि इसके ऊपर पहले भी दर्जनों मुकदमा मौजूद। वसीम साबिर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की जेर सदारत इंसदादी पोलियो मुहिम के दूसरे रोज की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, DDHOs और दीगर की कसीर तादाद में शिरकत। डीसी लाहौर मोहम्मद अली को ब्रीफिंग दी गई कि दूसरे रोज 4,19,956 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। पहले 2 रोजा पोलियो मुहिम में मजमूई तौर पर 8,55,692 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। डीसी लाहौर ने पोलियो मुहिम में सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी हैं। डीसी लाहौर मोहम्मद अली का कहना था कि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। वालिदैन पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों के मुस्तकबिल के जामिन हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में 513 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा मंसूबा सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में 513 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने बड़े मंसूबे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में 513 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। ये बसें माहौल दोस्त साबित होंगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बड़े मंसूबे का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में 513 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में 513 इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसों की असूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने फीडर रूट के लिए मजीद बसें लाने का प्रोजेक्ट तैयार करने का भी हुक्म दिया है। फीडर बस सर्विस को लाहौर से शेखुपुरा और मुरीद के तक बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। वज़ीर आला ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को बहाल और मजीद फाल करने का हुक्म भी दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि कोहिनूर गुड मॉर्निंग शो पर डॉक्टर नबीहा और मैंने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की कारकर्दगी और लाहौर में बसों की किल्लत की निशानदेही की थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फौरी तौर पर इजलास तलब किया और बसों की फराहमी की मंजूरी
دی ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد منیب سلطان چیمہ، چیئرمین پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میاں ہارون اکبر، سیکرٹری ٹرانسپورٹ، سیکرٹری خزانہ، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب محمد خان بھٹی، سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ جی ایم سکندر، سیکرٹری پی ایم اے، رکن صوبائی اسمبلی شمیم آفتاب اور دیگر متعلقہ حکام بھی اجلاس میں شریک ہے۔ جی عاصم راجہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ سے متعلق راولپنڈی میں تیاریاں جاری ہیں۔ راولپنڈی میں پہلے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں آج پریکٹس کریں گی۔ 3 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کی ٹرافی کی تقریب رونمائی بھی آج ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔